السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برداشت گروپ میں جناب احمد علی عبداللہ فاروق الیمانی صاحب کا انشاءاللہ اس انٹرویو میں استقبال کریں گے ہم، اور ساری تفصیل انشاءاللہ ان سے لیں گے۔ جناب احمد الیمانی صاحب، آپ کی تعریف، آپ کا نام اور آپ کی پیدائش اور آپ کہاں پر پڑھے، یہ ذرا تفصیل سے، آپ کی جتنے بھی احباب ہیں برداشت گروپ میں، تفصیل سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہماری جو پیدائش ہے بارکس 1810 مکان نمبر، وہیں سے وہیں پیدائش ہے ہماری، ابو جیدی گھر کے سامنے۔ اچھا، اور ہماری بچپن سے ہماری 5 کلاس تک ہم نوری شاہ کے اسکول میں پڑھے، تو پرودان کی گولی کے پاس تھا، شہزادے شمشیر خان کے گھر میں۔ وہ ختم ہونے کے بعد ہم 5 کے بعد یہاں آئے سرکاری اسکول میں، جو سی آر پی کے ایریے میں تھا۔ اچھا، وہاں تقریباً ہم 10ویں تک پڑھے۔ 10 کلاس میں ابھی اس پورا سفر ہمارا بستی کے بچے تھے، سب ہمارے بستی کے لوگ، بستی کے دوست سب، اور فٹ بال وغیرہ کھیلنے کے لیے بھی ہم چکی پہاڑ پر جاتے ماشاء تقریباً۔ اور اس کے علاوہ مشغلہ جو ہے کچھ ورزش وغیرہ کا بھی تھا، واسطوران کی تعلیم میں جاتے تھے۔ اللہ۔ اچھا، جو ہمارے ساتھی اس میں گروپ میں ہے جو یحییٰ قریشی صاحب، اس طرح سے، اور یوسف صاحب بھی تھے، محمد یوسف۔ اچھا، آپ کا میڈیم کیا میڈیم تھا؟ انگلش میڈیم اردو تھا یا میڈیم، اردو ہم میڈیم؟ لوگ اردو میڈیم سے تھے۔ اچھا، آپ کے اساتذہ کا کچھ نام؟ وہ ہمارے اساتذہ میں ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے عبدالکریم صاحب بولتے تھے، یہاں کے 6 سے 10 کے۔ اچھا، اور اس سے پہلے کے جو تھے پرائمری کے صحرائی صاحب بول کے چھجر چبوترے کے رہنے والے تھے۔ اس میں اساتذہ میں نام ہے، ایک ہمارے والد صاحب علی بن عبداللہ ایمانی صاحب، دوسرے سالم بحمد صاحب، تیسرے رحمت علی صاحب، چوتھے منصور مسعود صاحب ٹیچر۔ اس طرح سے ہمارے جو ہیں یہ پرائمری اسکول کے تھے اچھا، اساتذہ۔ اب اس کے بعد جب ہم آئے یہاں 6 سے 10 تک کے واسطے، یہاں عبدالکریم صاحب بولے جو ہے صدر صاحب تھے، اور عبداللہ بارکن صاحب اساتذہ میں تھے، یعقوب صاحب تھے ٹیچر، اور ایک مرتضیٰ علی صاحب تھے، اور ایک لیڈی ٹیچر تھے ہمارے اشرف سلطانہ نام تھا، وہ بھی اسکول میں پڑھاتے تھے، ہمارے اساتذہ میں سے ایک تھے۔ اس طرح سے کچھ نام تو یاد نہیں آ رہا اساتذہ کے۔ اچھا، مرحوم عبداللہ بارکن صاحب یہ کیا پڑھاتے تھے؟ کیا ان کا؟ عبداللہ بارکن صاحب اردو پڑھاتے، اچھا، ان کو اردو پڑھاتے تھے، اور بہت اچھی طرح صحیح پڑھاتے تھے تقریباً، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ جنت نصیب کو دلائے۔ اسکول میں کون کون پڑھے آپ کے ساتھ دوست احباب؟ برداشت گروپ میں ہے انہوں یا؟ برداشت گروپ میں ہمارے اس میں پڑھنے والے ہمارے ساتھ جو ہے نا، ایک یحییٰ قریشی ہے، اچھا، اور دوسرے محمد یوسف ہے، تیسرے محمد یونس ہے، اچھا، اور چوتھے صابری ہے، حبیب صابری، بغدادی ہے نا، بغدادی۔ ہمارے صدر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، شکراً۔ اور نائب صدر صاحب کے تو بھائی ہیں وغیرہ تھے، اور یاد نہیں آ رہے ہیں پوری طرح سے۔ جلیل خرموشی صاحب، عبدالرحمن گرموشی صاحب، ہمارے ساتھ بھی ہیں، اچھا، کلاس 6 سے ہیں ہم لوگ۔ اس طرح سے جو ہے نا ہم تعلیم ختم کریں۔ اور آپ کی شادی ہماری شادی جو ہے الحمدللہ کون سے سال میں ہوئی؟ 84 میں ہوئی، اور 8 جنوری۔ اچھا،
1984 में शादी हुई। उस वक्त मैं जो है ना सऊदीया से आया था शादी अच्छा। करने के लिए। कितने लड़के हैं आपके? मेरे को जो है ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 3 लड़कियां हैं, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तीनों की शादियां कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो है ना ये तीनों बच्चियों के अब 4 नवासे 4 नवासियाँ हैं हम लोग। माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हिफ़्ज़। आमीन या रब्बी। अच्छा, बच्चे? लड़के नहीं हैं। अच्छा, लड़के। मेरे को लड़के नहीं हैं। अच्छा साहब। तो और खलीज का दौरा कैसा, कल कब हम आए शुरू थे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 1978 में आया था मैं 9 जून में। 1978। 9 जून में आया था दुबई। बारकस से? बारकस से दुबई। दुबई आए थे। अच्छा। दुबई में जो है ना यहाँ 2.25 साल थे हम। वैसे हमारा प्लान था सऊदीया जाने का, अच्छा। जो उम्र कम होने की वजह से हमारे को वीज़ा नहीं लग रहा था सऊदीया का। तो 21 साल की शर्त थी जो पहले। अच्छा, तो दुबई वाले एक्सेप्ट कर लिए? दुबई को ऐसा नहीं था। 18 साल कुछ? 18 साल, 17.5 साल 18 साल थी मेरी उम्र। अच्छा अच्छा अच्छा। जब आया मैं यहाँ 2 साल 2.25 साल शाह राशिदिया में थे। और उसके बाद जो है यहाँ से हम हैदराबाद गए। हैदराबाद में सऊदीया के लिए बैठ गए, ये वीज़ा कैंसिल करके। राशिदिया में किसके यहाँ पास पर? था? हाँ, राशिदिया में किसके पास राशिदिया में थे? हम एक टेलर का काम करते थे, जो लेडीज टेलर। अच्छा अच्छा। एक शॉप, टेलरिंग शॉप बोल के थी, बाप की ईसा बोल के ईसा, उनके पास करते थे हम 2.25 साल करे। उसके बाद फिर इंडिया को छुट्टी गए तो एग्जिट लेके गए यहाँ से। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दुबई में यहाँ पर? नहीं, दुबई अच्छा ही है, अच्छा ही था। जब पूरे अच्छा। हमारे पुराने मिलने वाले हमारे अपने रिश्तेदार भी हैं यहाँ। अच्छा, मगर आपकी ख्वाहिश थी कि सऊदीया में काम करना? जाना भी सऊदीया में था। अच्छा। ये अब्दुल्ला बिन लतीफ साहब की मेहरबानी है जो वीज़ा का अरेंज करके यहाँ बुलाए। कौन अब्दुल्ला बिन लतीफ? अब्दुल्ला बिन लतीफ अलजाबी, अलजाबी। माशाअल्लाह, जो कि राशिदिया में ही था पहले। राशिदिया में थे उन्होंने, तो हम भी वहीं थे। उन्होंने वहीं बुलाए थे मेरे को, कोई दुकान पे बुलाए थे प्राइवेट। हाँ, वो दुकान पे काम करता जी था। हाँ, दुकान पे काम करते थे। रहने वगैरह का भी वहीं था। तो अब्दुल्ला से रोज़ाना मुलाकात होती थी हमें। ड्यूटी से सीधा मेरे पास आ जाते थे, हाँ हाँ। बैठ के बात होती थी 1 घंटा 1.5 घंटा। दोस्ती हमारी तो साथी थे ना, स्कूल के साथियों में अब्दुल्ला बिन लतीफ थे पूरे यारी। हाँ, 6 के उसमें क्लासमेट थे? हाँ, क्लास में। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद बारकस में कितना अरसा रहे वहाँ पर? फिर उसके बाद बारकस से फिर जिद्दा? हाँ, बारकस में 6 महीने रहा मैं। अच्छा। वापस खलीज से आने के बाद 6 महीने यहाँ रहा मैं हैदराबाद में, बारकस में। उसके बाद फिर वीज़े का अरेंज हो गया। हम एक इंटरव्यू दिए थे, एक टीम आई हुई थी, बिन महफूज थे। अच्छा, बारकस में? बारकस। अच्छा। बारकस में नहीं, बल्कि मोती गली खिलवत में आए थे हम अच्छा। इंटरव्यू। रात में हमारे एक दोस्त थे हमारे, बामसूद, सईद बामसूद। उन्होंने आके बोले भाई ऐसा ऐसा इंटरव्यू चल रहा वहाँ सऊदीया का है, चलो। तो हम तो यही काम कर रहे थे, लेडीज काम, लेडीज का ही गए थे। एक्सपीरियंस भी था माशाल्लाह? अच्छा। एक्सपीरियंस था, उसीलिए हमारे को लिया। अच्छा। वीज़े तो 6 थे, आदमी 60 आए थे। ओहो, उस जमाने की बात है, 79। 6 के 600 होते ये आपके नसीब की बात है। हाँ। 80 में से मेरा 80 एंडिंग में था जब गए हम। इंटरव्यू लिए, 2 दिन के बाद बुलाए, बोले आप आइए 2 दिन के बाद। फिर हम तो आए, गए नहीं, फ़ोन नंबर ला लिया था, फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोले भाई हाँ वो आप सिलेक्शन हो गया आपका, आप आइए। फिर हम जब गए तो सईद बकरी साहब थे एजेंट हमारे बारकस के। अच्छा। बहरहाल उन्होंने बोले ऐसा ऐसा, बहरहाल कुछ पैसे हैं उनको दे के आना पड़ा, 5300 रुपये उस जमाने के। बड़ी रकम थी वो? बड़ी रकम थी। जी। उसमें टिकट था, हाँ, इमिग्रेशन था। अच्छा। उसी में तो पूरा पैकेज था समझिए? हाँ, इमिग्रेशन टिकट, वीज़ा फ्री था ना। अच्छा, काम तो उन्हीं के पास करना था। सही बात। बहरहाल इतने शानदार आदमी में उसके बाद से मेरे को मिले थे बिन महफूज, काम के तक इतना प्यारा काम लेने वाले, तनख्वाह की। क्या नाम बिन महफूज था? हाँ। सही, रईस बिन अबू बकर बिन महफूज थे। उन्होंने है ना सिटी के छः कहीं मेरे ख्याल से, लेकिन जमाने से चले गए थे, वक्त नहीं आते। तो क्या उनके पास कोई कंपनी थी वहाँ पर? नहीं, डाले थे उन्हें दुकान इसकी। अच्छा। टेलरिंग। अच्छा, टेलर की दुकान? टेलर की दुकान हाँ। थी। उन्होंने खुद भी सऊदीया में काम करते थे, अच्छा। सऊदी एयरलाइंस में थे।
बहरहाल जो है ना बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह जन्नत नसीब करो बेचारे। अच्छा, वहाँ पर जिद्दे में एक शख्सियत है, उनका नाम हसन मक्कावी, हम लोग भी टेलर ही। हाँ, हसन की पहचान रहे आप? हसन साहब की भी दुकान थी, अच्छा, मुस्तफा भाई की भी दुकान थी। हाँ हाँ, अब तो ये लोग उठा दिए दुकान। अच्छा। अब मुस्तफा भाई जो है ना मशीन वगैरह बेच रहे हैं। ये हसन मक्कावी के बारे में पूछे, उसके बाद हाँ टेलर की दुकान थी, मुस्तफा साहब की दुकान कंपनी, थी, हाँ हसन भाई भी करते थे। अच्छा। मुस्तफा भाई में अपनी थे, जिनके बड़े भाई मुस्तफा मुजफ्फर अच्छा, अच्छे आदमी है। तो उन्हीं के भाई के, उन्हीं के भी अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, हम हाँ। तो काम जो कर रहे थे वो तो अलग है। अच्छा वो अलग है, अच्छा ठीक है, वो तो हाँ, बिल्कुल बताइए। मुस्लिम। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हों मक्का भी जी मुस्तफा मुजफ्फर मक्का भी। अच्छा, तो बिल्कुल तो साहब के पास हम लोग कुछ काम तफसील से करें। बताइए। हाँ इब्न महफूज के पास तो हम 4.5 साल काम करे। अच्छा बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। वो तनख्वाह हमारी बस नहीं हो रही थी, अच्छा, हाँ तो हम जो है ना कहीं दूसरी जगह कोशिश करें। आके बोले अरे तुम कैसा चाहते, तुम नहीं जाना, तुमको नहीं छोड़ता मैं। फिर 2-3 दिन 4 दिन जो है ना हमको समझाया मैं, ठीक है भाई, अब तुम्हारे को अच्छी तनख्वाह मिल रही, यानी तुम्हारे को फायदा हो रहा, तो मेरे को रोकना गलत है। ठीक है, मैं तो आपको बढ़ा के तनख्वाह दे नहीं सकता हूँ। बोले उसके तो बाद आपको तनाजुल दे दिए। तनाजुल का तब सिस्टम नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ, असल में हम क्या कर रहे थे, वीज़ा दूसरा होगा हमारा। अचानक उन्होंने बोले भाई दे दो, छोड़ देता हूँ आपको, जैसा बोले वैसा। वो साहब बोले, अब मेरे को जाके भी तकरीबन 2 साल हो गया था। अच्छा, तो वीज़ा ले लिया उनका, तो साहब मैं बोला नहीं, तनाजुल तो नहीं लाता हूँ, आप वीज़ा दे दो। बोले तो मैं वीज़ा दे दी, कैंसिल करा लिया। कैंसिल करा दिया, वीज़ा ले लिया, कैंसिल करा दिया। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मुश्किल से कैंसिल करे वीज़ा। सुल्तान, हाँ, नहीं कर रहे थे, 1.5 महीना के बाद करे कैंसिल। अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है ना। बहुत अच्छे आदमी, हाँ। बहुत अच्छे आदमी थे सबसे, जी। हमारे से क्या है, हमसे ज़्यादा अच्छे कभी किसी का 1 रुपया दबाना देर ऐसा नहीं। अच्छा, प्यारे आदमी थे। बहरहाल समझिए, उसके बाद दूसरी विजिट पे आए, स्ट्रगल चला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। उसमें भी ये कहाँ पर रहा आपका काम, ये दूसरे? दूसरा जो है ना, हम ये आज़ादी से काम करते थे, नहीं भी कर रहे थे काम। ये तो काम आज़ादी से था। जो दूसरी वीज़ा पे हम गए हाँ, तो कहीं भी काम कर सकते थे। तो मसमूह था, यानी आप कहीं भी हाँ, कर कहीं कर सकते सकते थे, अच्छा। ऐसा नहीं था, कानून नहीं था। अच्छा, तो लेबर ऑफिस ही वो कुछ कुछ भी आपको, नहीं था, हाँ, वो कानून नहीं था। ठीक है। नहीं भी कर लो, क्या है, कम थे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत अच्छा था। अच्छा, वो काम करे हम थोड़े दिन, वो भी 5-6 साल ऐसे ही काम करे, 8 साल में ख्याल से 8 साल काम किया। उसके बाद वहाँ से कुछ वजूहात की बिना रहना, उससे कैंसिल लेना पड़ा। अच्छा, उनसे कैंसिल लिए, हमारा रिक्रूट हो गया सऊदी एयरलाइंस में। अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ी जगह में। एक सूडानी बेचारा दोस्त था मेरा, अच्छा, तो मैं तो जा रही था, वो कैंसिल करके इंडिया में सेटल होने का सोच लिया था। अच्छा। वो सूडानी 2 दिन पहले मिला मेरे से। लेकिन बोला क्या है तुम जा रहे हो? हमारा जा रहा हूँ जमरा में, सऊदी में कर लेते क्या, सऊदी में कहाँ मिलती चांस खोल के, ऐसा सोचा। मैं अरेंज करता हूँ तुम्हारे रास्ते। मैं बोला 2 दिन का टाइम, 2 दिन में सोच के बोलो, मैं तो मैं टिकट करा रहा हूँ। 2 दिन में बेचारा जो है अरेंज कर दिया। सऊदी इंटरव्यू दिए, बहुत अच्छे, उसमें 3-4 सऊदियाँ बैठे थे। अच्छा, सवालात करे मेरे, 2 सवालात करे, थ्योरी सवालात में सब्जेक्ट कामयाब होगा और वहाँ लिख दिए। बोला खलास ठीक है, हमारे लिए इतनी की जरूरत थी, एक्सेप्टेड। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं लिए होगा। अच्छा, तो फ्लाइट के सीट बनाने का काम है ना, सऊदी एयरलाइंस के जो फ्लाइट के सीट है वो बना रखे। अल्लाह का ऐसा रहा, फोरमैन का जॉब था वो, तो ये गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब। सऊदी को गवर्नमेंट बोलते हैं, सऊदी एयरलाइंस। हाँ, सऊदी एयरलाइंस में जॉब, एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी। डेकोरेशन में आते थे, हमारा सेक्शन T सेक्शन डेकोरेशन में था। तो हम करते थे, हमारा जो मैनेजर था बेचारे घर भी बोल गया था, बहुत प्यारा आदमी, अल्लाह का ऐसा बेचारे। वो जो है ना, तो कितने साल काम करे आप सऊदी में 9 साल काम करा। 9 साल। अब उसके बाद सऊदी एशियन आया, उसमें जो है ना हमारा जो मैनेजर था उन्हें बोला भाई सऊदी एशियन आ रहा है, आपको विजिट कर दे, उनका वीज़ा दिया। सऊदी एयरलाइंस का रूल्स था, जिस आदमी को जहाँ से लाए वहीं छोड़ देते। अच्छा, तो हमको जो है वीज़ा दिए थे, तो हम तो इंडिया से आए थे,
के हिसाब से। अच्छा। तो फिर इंडिया छोड़ दिया। इंडिया को जाना फिर? हाँ। अच्छा। लेकिन जो हरबी था हमारा जो मैनेजर था, हाँ पूरा मैं कोशिश करता हूँ ट्रांसफर की तुम्हारे लिए, तुम स्पॉन्सर ढूंढ लो। अच्छी बात है, उनके हम जाके बात करें। एक दोस्त था जी, 20-25 साल से दोस्ती थी इसकी। वो बेचारा बोला खलास कोई बात नहीं, पेपर में से ले लो, तुम ला लो अपने पास। तो ट्रांसफर हो गया इस तरह। वो भी ट्रांसफर बहुत मुश्किल से हुआ। अल्लाह की तौफीक थी, सब हो गया। हमारे वालिदैन की दुआ है, दोस्तों की दुआ है हमारा से। अल्हम्दुलिल्लाह। काम 3 महीने का काम 3 दिन में हुआ। सुभान अल्लाह। सऊदी एयरलाइंस का रूल्स है कि जो आदमी ट्रांसफर ले रहा, तनाजुल बोलते हैं उसको, अगर गवर्नमेंट मुलाजिम से प्राइवेट में आ रहे हैं तो 3 महीने तक आपकी जो है ना कार्रवाई हो सकती है। 3 महीने के बाद ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप जो है ना प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ रहे तो 0, एक ही दिन में। तो हम तो गवर्नमेंट से प्राइवेट में आ रहे थे, तो हमारे को 3 महीने था। हमारी कार्रवाई रियाज जाने वाली थी। तो हमारा एक जानने वाला था बेचारा अगीत, अच्छा। अब्दुल्ला हानी ज़ाहिरी बोल के अगीत था जवासत का। अच्छा। उससे सलामदार दोस्ती थी। तो बेचारा उन्हें बोला किसका है, बोला मेरा ही है। तो मेरे साथ चल के रमज़ान के दिन आते, अल्लाह बेचारे को अच्छा रखे। रमज़ान में चल के मेरा काम 3 दिन में ट्रांसफ़र वगैरह इकामा सब करके। ये बहुत बड़ा काम है समझिए। कई लोगों को, मिस्रियों को, सोडानियों को अपने घर जाना पड़ा। चांस मिलना मुश्किल है। नहीं, ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर, अच्छा। उन लोग 1 महीने का टाइम देते सऊदी एयरलाइंस वाले। तो क्या फिर कैंसिल करा के चले आना उसके बाद फिर? कैंसिल आप फिर अच्छा। फिर दूसरी वीज़ा पे आओ। अच्छा। लेकिन सऊदी अरब से जो है ना 1 ही महीने का टाइम मिलता है। तो इत्तेफाक से उस दिन हमारे नसीब खराब थे, 15 दिन का ही टाइम दे रही थी गवर्नमेंट, सऊदी अरब गवर्नमेंट। अच्छा। 15 दिन की। तो वहीं से फ़ोन करा मैं उसको, हमारा जो अगीत था बेचारा, उसको फ़ोन करके बोला अब्दुल्ला ऐसी बात है, 3 दिन का टाइम लेके और साइन करके पेपर में ला लो बोला। इतना वो आपसे बोला था। मेरा वो जवाजात में जो मुदीर था इसके साथ पड़ा हुआ था, एक ही राइट के थे लोग। अच्छा। तो मेरा जो है ना उसकी बात फिर करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा था। सर कितने साल में तकरीबन आपको सऊदी में? सऊदीया छोड़ के मेरे को 2003 में छोड़ा। 2003। अच्छा। तो 19 तक 16 साल हो गया मुझे सऊदीया छोड़। 16 साल। सऊदी एयरलाइंस छोड़ के। अच्छा। उसके बाद प्राइवेट में अपना काम कर लिया। तो पूरा कंप्लीट कितने पूरे साल का 40 साल एक्सपीरियंस है आपका? तकरीबन 40 साल की जिंदगी। हो। यानी आपकी आधी उम्र से जवान बन सऊदीया ले ली। अल्लाह की इबादत फरमाए। अल्लाह का एहसान है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह आएंगे बर्दाश्त ग्रुप की तरफ। बर्दाश्त ग्रुप। जी जनाब अहमद साहब, जी साहब, बर्दाश्त ग्रुप में इंशाल्लाह हमारी बर्दाश्त आपकी कैसी एंट्री हुई, बहुत प्यारी एंट्री, तफसील से बताइए साहब। प्यारी एंट्री हुई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जो है ना हमारे याहिया कुरैशी साहब, अब्दुल्ला बिन लतीफ साहब मिल के करें। अच्छा। मेरे को एक दिन फ़ोन करे थे, बोले भाई ऐसा ऐसा हम आपको ग्रुप में डाल रहे हैं। तो मैंने क्या क्या ग्रुप है भाई? तो बोले नहीं मैं शेख मोहम्मद जुबैदी साहब ग्रुप में डाल, मेरा जिलानी साहब। हाँ। तो पहचानत आपकी थी? हम लोग साथ में एक ही गली के हम लोग। माशाल्लाह। ठीक है। तो मैं बोला अरे जुबैदी आर्ट क्या पूछा? मैंने हाँ। आओ जुबैदी आर्ट। तो बोला ठीक है डालिए, लिखते हो ये डाले समझिए। तो अब्दुल्ला बिन लतीफ की उनकी जिस तरह से एंट्री हुई, हम जब देखे तो बड़ा प्यारा, वाकई हम लोग पसंद आया मेरे को। किस्मत है भाई आपकी माशाल्लाह, बर्दाश्त ग्रुप में आएंगे। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं आने की। हाँ, इंतजार में है समझिए। लेकिन हम जो है ना उसमें इंटर नहीं हो रहे, बस जिससे मौता के लिए इंटर हो रहे हैं, किसी की मुबारकबादी के लिए इंटर हो रहे हैं, लेकिन कोई उसमें नहीं आ रहे हैं। सही बात है, बहुत प्यारा ग्रुप है। आएंगे अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह। सदर साहब का ये बहुत वो है इंशाल्लाह। बहुत प्यारा ग्रुप है बर्दाश्त प्यारा ग्रुप। ग्रुप है और हम लोग आने से पहले बहुत प्यारी मेहनत है। जी हाँ, सदर साहब की जो है ना संभाल के बहुत प्यारा रखे। और जो है मरहूम साहब भी ऐसा चुन के जो है नायब सदर साहब बनाए थे बेचारे, जबरदस्त थे। अल्लाह जन्नत नसीब करो। ये दोनों की काविशें हैं समझिए, सदर साहब और नायब सदर साहब की, ग्रुप है सब। जो आज बर्दाश्त ग्रुप माशाल्लाह इतना कौन सी चीज कब क्या करना आगे बढ़ गया। वक्त हाँ। बना के रखें। जी वो वक्त से आदमी कोई भी हटना गलत है। सही बात है।
बर्दाश्त ग्रुप देखिए, एहतराम करना चाहिए। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो थे हाँ इस ग्रुप में आने से पहले। आके अल्लाह के फजल व करम से माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखे समझे और काफ़ी मालूमात। बहुत मालूमात हुए। बहुत सारे हमारे दोस्त जिसको हम खाली बचपन में जहन में चेहरा था, लेकिन बाद में मालूम हुआ ये है वो है, समझ में आया। दीनी मालूमात, दुनिया के मालूमात, बहुत मालूमात हुए। प्यारे प्यारे मज़ाहिया भी है उसमें। आपको कैसा लगा ग्रुप में आके आने? प्यारा है, स्वस्थ है, बहुत प्यारा है। इस बात से कोई चीज़ आने के वास्ते अभी हम सोच रहे हैं उसमें कुछ गलती ना हो जाए, ये है बस डर, और कुछ डर नहीं। भाई कोई चीज़ हमारे से लिखी गई है, बोली गई, तो ज़रा बचा होना चाहिए। मुश्किलें हैं, सब आपके अहबाब, आपके दोस्त है सब ये। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तकल्लुफ़ क्या है, 1 महीना 2 महीना बस, उसके बाद फ्री हो जाना इंशाल्लाह बराबर। और सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है इंशाल्लाह, ये हमारा इंटरव्यू फेस कराए। और हम जो है ना इससे पहले भी 2 बार जो है ना कोशिश करे थे। हम कोशिश नहीं करे, सदर साहब कोशिश करे थे जी, लेकिन इत्तेफाक से नायब सदर साहब की मौत के बाद वो हो गया था। लेकिन इंशाल्लाह अब मौका मिला, आज हम दुबई आए हैं ना, सऊदीया जाते हुए इंटरव्यू दे के सऊदीया जा रहे हैं। बस हम सबकी जो है ना दुआ के लिए हम हरम में जा रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करेंगे सबके लिए, हमारे ग्रुप के जितने हैं उनके आयल के, सदर साहब के आयल की, सबके लिए दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। करना है। अच्छा, दुबई में कितना आपका मुकाम रहा है यहाँ पर? यहाँ कब आए आप, कौन सी तारीख को मैं आए? यहाँ आया क्वारंटाइन में है। अच्छा, सऊदीया के रूल्स के हिसाब से 15 दिन दूसरे मुल्क में रहना है, कंपलसरी रहना आपको यहाँ कंपलसरी पर? रहना है। अच्छा, तो वो क्वारंटाइन में आया। जो वैक्सीन यहाँ लिए हैं इंडिया में, उन लोगों को जो है ना क्वारंटाइन है। जो वैक्सीन सऊदी अरब में लिए हैं वो डायरेक्ट जा सकते हो लोग? तो हम अच्छा, सब वैक्सीन यहाँ लिए थे। तो 14 दिन हो गए, 13 दिन हो रहे हैं मेरे पास। एक 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट है। 2 दिन के मेहमान है समझो। यहाँ 16 तारीख को मैं सऊदी अरब से जिद्दा जा रहा हूँ इंशाल्लाह। 5 बजे फ्लाइट है मेरी। तो बिस्सलाम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। आपका इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है इस वक्त? हमारा इंटरव्यू जो हो रहा है हमारे हरदिल अजीज दोस्त सईद मोहम्मद अवीनी साहब के घर में हो रहा है। ठोको। खाली अपने घर में हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपके बच्चों को सब सेहत आमीन। आपके आयल और को सबको इंशाल्लाह सेहत वाफिस से रखे, आपके गुलाम से दूर रखे। दुआओं के मोहताज है आपकी बराबर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब भी वहाँ पर उम्रा हुआ और आप बता रहे थे कि वहाँ पर उम्रा इंशाल्लाह हमारे मरहूम नायब सदर साहब के नाम पे आप मैं करेंगे। पहले सोचा हूँ, मैं हाँ। आपने ही बोला मैं हमारे मोहम्मद शेख सदर साहब को, अच्छा, लेकिन मेरा इरादा इंडिया में छुआ था। अगर मैं सऊदीया तो इरादा नहीं था मेरा जाने का, अचानक बना प्रोग्राम। हालांकि वीज़ा में मेरे को 15 दिन बाकी है वीज़ा में अच्छा, सऊदीया का वीज़ा। तो मुझे गए बात तो खैर रिन्यूअल हो जाएगा, वो बात अलग है। इंशाल्लाह। तो मैं सोचा था सऊदीया गया तो जो है एक उम्रा सदर साहब का करेंगे सोचते हैं, और इंशाल्लाह बराबर करूँगा मैं इंशाल्लाह। बेचारे के लिए बहुत शायद अल्लाह आपको कामयाब करे, कबूल करे आपके उम्रे को इंशाल्लाह। गाँव हो गया था उनसे मैं, ला शक। हर दावत में हम जा रहे थे, आ रहे नहीं हैं फारूक साहब बोल के फ़ोन करते थे। हालांकि सब काम छोड़ के जा रहा था। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हुई, बहुत प्यारी शख्सियत, महबूब शख्सियत। बहुत दुख हुआ मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा। अभी भी ऐसा दिखता है मेरे को, अभी भी है, कोई नहीं सकता ऐसा। हैदराबाद में है। ऐसा कुछ सही नहीं बात है। सकता। अल्लाह यरहम। आमीन। और कुछ दुआ है हमारे अहमद साहब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त ग्रुप के लिए, बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर्स के लिए कोई नसीहत, कोई नसीहत दे सकते, इरशादात आपके? अपनी नसीहत तो नहीं दे सकते। बहरहाल जो भी है टाइम का जो है ना और वक्त का जो है ख्याल रखे सब ग्रुप वाले, हम सब ख्याल रखना चाहिए। सदर साहब की जो मेहनत है उसको जो है ना हम मंजिल मकसूद तक पहुँचाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आप बर्दाश्त ग्रुप के माशाअल्लाह मिलाओ रे। इंटरव्यू को कामयाब करे आप। बहुत अच्छा लिखा। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे इंटरव्यू लेते रहेंगे इंशाअल्लाह।